मैम। Priyadarshini, can you hear me? Yes, ma'am. आगे मैम कौन कहूଥିଲେ मैम कहंतु। ମୁଁ କହୁଥିଲି କଲେଜରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢା ହେଲାଣି ମାନେ କୋଉ ୟୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? मैम सिंबॉलिक लॉजिक जे सर जाइछे मैम जो पर्सन ता छाड़ी थिले मैम जो एरिस्टोटल डिक्टम और स्पेशल सिलोजिस्टिक रूल्स आउ जनरल सिलोजिस्टिक रूल्स एबे जनरल सिलोजिस्टिक रूल ता सर जाइछे तो मैम को एबे टिके ना को फ्रैक्चर जाइछे तांको कलर बोन ता तो से बे क्लास करनांती। ଆଚ୍ଛା ଆମର ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ସ୍ପେଶାଲ ସିଲୋଜିଷ୍ଟିକ ରୁଲ୍ସ ଆଉ ଜେନେରାଲ ସିଲୋଜିଷ୍ଟିକ ରୁଲ୍ସ। यस मैम ओनली एरिस्टोटल डिक्टम और रिडक्शन ता थिला। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜି ସେଇଟା ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ଦେନ୍ ଏଇ ଦିଟା ୟୁନିଟ ପରେ ମୁଁ ତମର ସିମ୍ବଲିକ ଲଜିକ ଟା ପଢେଇବି ଠିକ आज्ञा ଅଛି। मैम। आज्ञा मैम। ତମର ସିମ୍ବଲିକ ଲଜିକ ୟୁନିଟ 5 ନା? मैम मन्ने नहीं। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି ତମର ମିକ୍ସ ଲଜିକ ଟା ଅଛି ୟୁନିଟ 2 ୟୁନିଟ 3 ହଉଛି ତମ ଫାଲାସିସ୍ यूनिट 4 होची तमरो मिल्स मेथड आउ यूनिट 5 होची ओके मैम।
symbolic logic then ମୁଁ ତମର symbolic logic ଟା ଏଟା ପରେ ଏଟା exam ପରେ ମୁଁ ତମ symbolic logic ଟା ପଢେଇ ଦେବି ଠିକ ଅଛି ओके ओके मैम ନା exam ସରିଗଲା ବୋଲି ତମ ପିଲା ଗୁଡା କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲେ अच्छा अनिशा अनम्यूट करो यस मैम अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस पचारूछु मुझे तो आंसर दियो ओके डिलेमा रो डेफिनेशन टा कहलो शीघ्र तमे लॉन्ग क्वेश्चंस मात्र गोटे आंसर करथिलो ना ओके को डिलेमा रो डेफिनेशन मैम अबे मन सेटा लर्न कर देते मन तो टिके लर्न कोन गोटे दिन पे की हुए लर्न गोटे दिन पे की हुए माने जो दिन एग्जाम थी अब से दिन सिर्फ लर्न कर देबो तापर दिन हमको पचारले हमको आसीबे नै भूली जिबा हां आंसर दियो मिक्स हाइपोथेटिकल डेफिनेशन टा को मिक्स हाइपोथेटिकल डेफिनेशन टा को मैम किए अनीशा मो ग्रुप रे तुमको पठौची कहार केते मार्क अछि समझ चेक कर पाइले समझते मिलला ना मिलला नहीं मैम प्रीवियस एग्जाम रे यूनिट 1 जो एग्जाम ही थिला तम तीन जनकर कार केते मार्क थिला वॉइस ब्रेक होची
Ma'am, 27 out of 30. Okay, Anisha. Anisha. Soumya. ମୁଁ ମାର୍କ ଜାଣିନି ଆପଣ କହିଥିଲେନି ମୁଁ ସେଦିନ ଲେଟ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତୁମେ ତମ ମାର୍କ ମୁଁ କହିନଥିବି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଯାହାର ଯେତିକି ମାର୍କ ରହୁଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନେ କପି ହଉ କି କିଛି ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିକି ରଖିବ ଯେ କୋଉ ୟୁନିଟ ରେ ତମର କେତେ ମାର୍କ୍ସ ଆସୁଛି। ତମେ ଡେଭଲପ କରୁଛ, ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛ या ତାକୁ ଡିକ୍ରିଜ କରୁଛ। ଶୁଭିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? Yes, ma'am. ଓକେ, ତମର ତ ଆଜି କିଏ ବି ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖ ନିଜ ବୁକ୍। First of all, Aristotle's dictum. Okay. In order to test the validity of syllogisms, Aristotle has framed a rule known as Aristotle's dictum or dictum de omnium nullo. In order to test the validity of syllogisms, Aristotle has framed a rule known as Aristotle's dictum or dictum de omnium nullo. এটা তুমি সমস্ত আন্ডারলাইন করো। ম্যাম কোটা Aristotle has framed a rule known as Aristotle's dictum or dictum de omnium nullo. और dictum de omnium nullo literally ता माने कौन? Literally ता माने होची the statement concerning all and none. The statement concerning all and none. Is that clear? Syllogisms ର जो validity को validity तार validity माने testing कराए कि सेटा valid कि invalid. Okay, Aristotle ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଗୋଟେ method, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଗୋଟେ ମାନେ put କାଢିକି ଅଲଗା ଗୋଟେ way କାଢିକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି normally testing the validity ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଏଇ ଆମର special syllogistic rule use କରିଦେଲେ, general syllogistic rules use କରିଦେଲେ, ତ ସିଏ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ accept କରୁନଥିଲେ। ସେ only accept କାହାକୁ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସେଟା ନିଜ ତାଙ୍କର method କାଢିଲେ, ନିଜେ ତାଙ୍କ rules କାଢିଲେ, ଆଉ ସେ ସେଇଟାକୁ ସେଟା valid syllogism ଟା valid କି invalid ନିଜେ ସେ ଜିନିଷଟା prove କରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ method या ତାଙ୍କ way ର ନାଁ ହଉଛି କଣ? Aristotle's dictum or dictum de omnium nullo. Is that clear? ଆଉ ତମର ଏଟା maybe short questions ବି ଆସିପାରେ। dictum de omnium nullo ର meaning କଣ? Dictum de omnium nullo ର meaning ହଉଛି the statement concerning all and none. Is that clear? yes ma'am Yes, ma'am. Then, according to this dictum, whatever that can be stated about all or none can also be stated about some affirmatively or negatively respectively. This dictum may be stated as whatever is affirmed or denied universally of a class of objects may be affirmed or denied of any object that is comprehended in the given class. एटा होची तमरा मीनिंग तमरा टोटल Aristotle's dictum ର definition. कोडु केतिकी whatever is affirmed or denied universally of a class of objects may be affirmed or denied any object that is comprehended in the given class. पूरा अंडरलाइन करो whatever to given classes पर्यंत। करिलो समस्ते? yes ma'am Yes, ma'am. Then एठी तांकर लिटरली कहिबा माने कोन कार Aristotle तांकर dictum रो mainly तार meaning होची कोन जे whatever that can be stated about all or none सबु आउ किछि नै ठीक अछि can also be stated about some affirmatively or negatively respectively माने
जो ऑल आउ नॉन से जो कहउछनी मेनली एटा जहाँ पे फोकस होछ ऑल माने कोन सब किछि नॉन माने कोन नॉन माने कोन किछिटा किछिटा मैम नॉन माने किछ नहीं किछि नोहे सेटा होछ कोन अबाउट मैम सम सम माने किछिटा हाँ सम माने होछ किछिटा नॉन माने होछ किछि नोहे ऑल माने होछ सब किछि ओके तांको कहबा मीनिंग कोन stated about some affirmatively or negatively respectively okay all or none ता भितरे तमर affirmatively भी जाउची negatively both दीटा को तमर जो अछि दीटा को सेटा से जाउची खाली गोटे जे पॉजिटिव साइड ओनली जाउची नेगेटिव साइड सेटा स्किप करे जे नो दीटा को साइड जाउची सेतिरे ऑल रे भी जाउची नॉन रे भी जाउची इज दैट क्लियर Yes, ma'am. Yes, ma'am. then this dictum may be stated as whatever is affirmed or denied universally of a class of objects may be affirmed or denied any object that is comprehended in the given class. Aristotle's dictum assumes two things. Aristotle कोन दीटा things को से assume करिले तांकर जो वे अछि टोटल तांकर dictum dominate नोलटे से दी समुद्र दीटा जिंस से assume करिले कोन firstly होची something is predicated of an entire class distributively it means the major premise must be universal से तांकर ए वे रे से कोन देखिले मेजर प्रेमिस टा मस्ट बी यूनिवर्सल अब मेजर प्रेमिस टा मस्ट बी यूनिवर्सल अब माने को प्रोपोजिशन रे रहइबो मेजर प्रेमिस टा मैम तो ये proposition याउ ई प्रोपोजिशन रे रहइबो ओके देन सेकंड और proposition नोटिस करिले an individual or a subclass is comprehended or contained in the given class माने the minor premise must be affirmative the minor premise must be affirmative माने को प्रोपोजिशन रहइबो A और I. I proposition O proposition I proposition O proposition okay तो लिटरली कहबा गले कोन अरिस्टोटल तांको डिक्टम रे अज्यूम करले दीटा जिंस फर्स्ट गोटे जिंस होची कोन मेजर प्रेमिस मस्ट बी यूनिवर्सल एंड सेकंड होची कोन माइनर प्रेमिस मस्ट बी affirmative इज दैट क्लियर मैम affirmative मैम A proposition हो और I proposition हो आई वो के कहला माने कहतला मैम A हेले universal I यूनिवर्सल देन तो तमर जदी ए और आई हैला तमर कंक्लूजन कोन हबो Affirmative अब. Universal. को अफर्मेटिव से अफर्मेटिव टा हो जो को अफर्मेटिव टा हो Particular affirmative. particular वॉइस ब्रेक हो जी प्रदर्शन Ma'am, particular affirmative. पर्टिकुलर अफर्मेटिव को प्रपोजिशन I proposition. आई Ma'am, I proposition. वेरी गुड समझ अंडरलाइन करो से दीटा the major premise must be universal and the minor premise must be affirmative करिलो yes ma'am then these two conditions are satisfied only in the first figure तापरे तांको मतरे कोन थिला अरिस्टोटल को मतरे होची कोन जे सिर्फ फर्स्ट फिगर रे तमरो ए दीटा कंडीशन टा लागू होची आ से एंटायरली बिलीव करूथिले ओनली फर्स्ट फिगर को से आ को फिगर को से बिलीव करू नथिले से को फिगर को बिलीव करथिले से अरिस्टोटल तांको मेथड तांको निज ओन पर्सनालिटी और तांकर ओन तांकर माने कोन प्रिजर्वेशन थिला कोन से सिर्फ बिलीव करूथिले फर्स्ट फिगर को okay and examine भी से फर्स्ट फिगर को करथिले को सैटिस्फाई भी से गइतिले कादरे फर्स्ट फिगर रे क्लियर then these two conditions are satisfied only in the first figure रे फर्स्ट फिगर डेफिनेशन के कहबो
मैम वो कोई भी प्रिया को Ma'am, in first figure, the middle term is the subject in the minor premise, and the sorry, ma'am, in the major premise and the major premise and the predicate in the minor premise. is she correct? Yes, ma'am. yes मैम Okay. Then example টা দেখো, all men are mortal. Ram is a man. Ram is a man, therefore Ram is mortal. Here in the major premise, mortalities are formed universally of the class man. In the minor premise, the individual Ram is comprehended in the class man. Hence, in the conclusion, morality is affirmed of Ram. This is strictly in accordance with the dictum. Okay. Then no parrots are black. Some birds are parrots. Therefore, some birds are not black. Here in the major premise, blackness is denied universally of the class parrots. In the minor premise, some birds are co-parented in the class parrots. In the conclusion, blackness is denied of these birds. This too is strictly in accordance with the dictum. In the above syllogisms, the attribute is the major term, the class is the middle term, and the individual or the subclass is the minor term. माने तमर एंटायरली ई सब जिंस कहिबारे माने कोन ना ताका डिक्टम रे मेनली हमें जानि छु हमर तीनटा प्रपोजिशन अछि तीनटा टर्म्स अछि ओके से एथरे कोन करछन जो तीनटा टर्म्स हमें आरंभ रे पढी पढी आछु से तरह क्लासेस रे डिवाइड कर दिछन गोटे क्लास सब क्लास एमती रे से डिवाइड करि दिछन ठीक अछि तो ताको सिलोजिम रे एंटायर अबव सिलोजिम रे कोन कहउची ना द एट्रिब्यूट इज द मेजर टर्म टा कोन होची एट्रिब्यूट ओके देन मिडिल टर्म टा होची तमरो कोन क्लास आ तमरो माइनर टर्म टा होची कोन द इंडिविजुअल और द सब क्लास इज दैट क्लियर Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लिटरली मते कहो तम जो फर्स्ट एग्जांपल जो देछि ऑल मेन आर मोर्टल राम इज ए मैन देयरफॉर राम इज मोर्टल एथरे एट्रिब्यूट इंडिविजुअल क्लास या इंडिविजुअल और द सब क्लास आउ तमरा क्लास कोन कोन मैम आपण टिके आउ थ रिपीट करंतु मैम मते किछ सुबरलानी अच्छा सुनो मो कहिली तमरा अरिस्टोटल से कोन कहि तमरा ए जो एभव हम जो सिलोजिम्स देखिले कोन ए जो ऑल मेना मोटल दीटा एग्जांपल से जो देले से दीटा एग्जांपल हमर एंटायर सिलोजिम में हम कोन देखिया को पाइलु जे द हमर हमें जानि छु हमर तीनटा प्रपोजिशन अछि तीनटा प्रपोजिशन बेसिस हमर तीनटा टर्म्स अछि तीनटा टर्म्स कोन मेजर टर्म मिडिल टर्म माइनर टर्म क्लियर ना नहीं यस मैम देन सेठी कोन कहचंती ना आमे ए जिंसटा आरंभ रो कोन पड़ी आछु ए सब जो टर्म्स द प्रेमिसेस कंक्लूजन ए सब एमती वे रे हमें पड़ी आछु किंतु अरिस्टोटल कोन करले ना ताको सब पार्टीशन कर दिला तर पर्टिकुलर तर स्टैंड पॉइंट्स बेसिस रे ताको तांको जागा देले मेजर टर्म होची एट्रिब्यूट माइनर टर्म होची तमरो कोन इंडिविजुअल और सब क्लास एंड कंक्लूजन होची तमरो कोन Class. मिडिल टर्म होची तमरो क्लास ओके तीनटा टर्म तमे पाई गलो मेजर टर्म मिडिल टर्म माइनर टर्म मेजर टर्म होची एट्रिब्यूट मिडिल टर्म होची तमरो द क्लास आउ तमरो माइनर टर्म होची कोन इंडिविजुअल और द सब क्लास इज दैट क्लियर यस मैम Yes, ma'am. से बुझी पाइलो Yes, ma'am. जदि हबो आको अंडरलाइन कर दबो ठीक अछि शॉर्ट क्वेश्चंस पई देन Aristotle's dictum necessitates that all valid syllogisms should be in figure 1 तो मु कोन कहली Aristotle only believe को फिगर ऊपर करथले Aristotle सिर्फ only believe करूथले First फिगर 1 figure. ऊपर okay then for Aristotle the first figure is the perfect figure and all the valid modes of this figure namely Barbara, Celarine, Darii and Ferio
are perfect modes since they are strictly in accordance with the dictum. से कौन कहथिले ना अरिस्टोटल को मतरे फर्स्ट फिगर होची गोटे वैलिड सिलोजिम फर्स्ट फिगर जो जो हमर भारती फर्स्ट फिगर टेक्निकली नेम्स गुडा के कहबो मते मैम बारबरा सिलर एंड मैम फेरियोड हां को डारे मैम बारबरा सिलर एंड फेरियोड आरियाई देन फिगर 2 रो के कहबो सुप्रिया मैम मु कहबे वेट सुप्रिया Yes, ma'am. Ma'am, मुझे मन नहीं. आउ के कहबो अनीशा 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 आंसर दियो फिगर 2 रो टेक्निकल नेम्स गुडा को आसीबो ना आसीबोनी ओके प्रियदर्शिनी को मैम केमिस्ट्रेस पारकु सेसारे फेस्टिन फिगर 3 रो को मैम कहबे हां को मैम फिगर 3 होची डेराप्टी डेटिसे फिलेप्टन फेरिशन डिशामिस एंड बोकाडो सौम्या यस मैम फिगर 4 मैम मैम फेरिसन मैम मोटे तुमको मन कौन पड़ो कहती लाइन बाय लाइन मन रखिया पे कहती एमती मजूरू एते टिके सेतरो टिके सीटा में पूरा लाइन बाय लाइन में आंसर दरकार आंसर दियो मैम मोटे मन नहीं आउ के कहबो मैम मु कहबे हां को मैम ब्रह्मंटिव कैमिनेस फेसाफो प्रेसिशन मैम आवर डिमरिस एंड कैमिनव कैमेना होची वीकेंड मोड सेटा दरकार नहीं ठीक अछि टेक्निकल नेम्स गुडा को जोटा तमरो मोस्ट इंपोर्टेंट होची कोन ब्राह्मणटिव कैमिनेस फेसाफो प्रेसिशन डिमारिस ओके आ जते ma'am. मन रखिबो एमते वे रे मन रखिबो एथिरो टिके ब्राह्मणटिव कहबो तापर फेसाफो कहबो तापर प्रेसिशन तापर कैमिनेस एटा पूरा भूल जते स्टार्ट करिवो गोटे माने गोटे साइड रो स्टार्ट करिवो ठीक अछि आ जते ये भी शीघ्र एटा है। मन रखे जेतेले हबो मु तुमको सेतेले जिंसटा पचर परिबी विष्णु आज्ञा मैम एटा टाइमिंग जॉइन करिवार मैम मु जान नथिली मु सोई पड़थिली अच्छा फिगर 2 रो टेक्निकल नेम्स गुडा को कहि देलो बही खोजुछ ना कोन मैम मन नहीं मुहटा धोई होतले मार्क मु ग्रुप रे पठे देछि चेक कर दबो ओके आज्ञा मैम जार भी मार्क्स को लेके किछि भी इश्यूज रहबो देन मते पचारि पर then Aristotle kon kahile na Aristotle's dictum necessitates that all valid syllogisms should be in figure 1 Aristotle ko matare je figure 1 रे होची संपूर्ण valid syllogisms टा होची proper पूरा proper syllogism valid syllogism होची figure 1 ताको हिसाब for Aristotle the first figure is a perfect figure Aristotle ko matare first figure होची गोटे कोन perfect figure and all the valid modes of this figure namely Barbara Celerandari and Ferriot are perfect modes since they are strictly in accordance with the dictum
this dictum is not directly applicable to the moods of second, third, and fourth figures. So these figures and the moods in this figure are imperfect. तो से कौन कहउछंती ना ए डिक्टम रे डायरेक्टली एप्लीकेबल हे परिबनी को moods उपरे the moods of second figure of moods उपरे डायरेक्टली अप्लाई करा हे परिबनी, थर्ड फिगर of moods उपरे डायरेक्टली अप्लाई करा हबनी, आउ फोर्थ फिगर moods उपरे डायरेक्टली अप्लाई करा हबनी. ए सब अप्लाई केमती करा हबो बिकॉज ऑफ एटा होची कोन इम्परफेक्ट फिगर, खाली गोटे होची परफेक्ट फिगर आ ता बेसिस रे ए सब जिंस खाली कंपैरिजन करिकि तुमको काढिबार अछि. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. मैम हां को मैम तांकर उल्टा कोन में फिगर 1 केवल हबो आउ तीनटा रे कोन में हबोनी? तांको हिसाब रे काहे कि ने जो अरिस्टोटल डिक्टम और डिक्टम डी ओमनिएट नुलो होची प्रॉपर तांकर से निजे सेटा को एस्टैब्लिश करचंदी एंड तांको मतरे होची कोन देखो मोर निजर गोटे ओन चॉइस अछि. ओके मो चाहिले माने कोन एक्सेप्ट का को भी करि परिबी. तमे जति जण पिला अछो मु जानि परुची को पिला केते हमर जो पाठ पढा को नै कि मु तमन को जज करि परि बिकॉज़ ऑफ कोन मु जानिनी तम माने obviously मे बी मु रॉन्ग हे पारे तम माने माने जो जो पिला को मु भाबी छी जे नै माने पिला एग्जाम से भलो करिवे आ ए पिला एते भलो करिवे नाही. दैट्स माय चॉइस माय ओन. मु तमको सेटा तम माने को अबिका पढा स्टेटस को नै कि मु भी सेटा जज करूची. मे बी मु इन केस फ्यूचर मु सेटा रॉन्ग हे पारे. तो एठी तांको से जिंसटा अरिस्टोटल डिक्टम होची तांको ओन से निजे एस्टैब्लिश सेटा करचंदी. तो तांको हिसाब रे फिगर 1 होची परफेक्ट फिगर, तार मूड्स गुडा को वैलिड मूड्स से आउ सब फिगर जो आ बाकी तीनटा फिगर हैला ताको से सीधा मना कर देले कहले एटा को मासे करबी नै एटा होची इम्परफेक्ट फिगर. ओके तो सेटा एटा कोन ए बेसिस टा होची ना कि सब लोक माने एटा समस्त माने आंकर एटा को भी क्रिटिसाइज करा हैछि माने भूल भी एपेंगे काढी चंती. किंतु जेहेतु अरिस्टोटल डिक्टम डोमिनेट नुलो जेतु गोटे लॉजिकली सेटा टिके बेसी हाई पावर ये अछि एटा को हमें एक्सेप्ट करूछु. किछटा लोक को एक्सेप्ट करछु ना किछटा को एक्सेप्ट करू नाहन. इज दैट क्लियर? यस मैम. If an imperfect mode in an imperfect figure is reducible to a perfect mode in figure 1, Barbara Seller and Daria Ferry. It means कोन ए जो imperfect mode गुडा को imperfect mode गुडा कोडा कोडा मैम सेकंड और थर्ड फोर्थ जो माने वैलिड मोड्स पाथला से होची imperfect गुडा को से कोन कोचंती जे if an imperfect mode in an imperfect figure is reducible to a perfect mode in figure 1, तो से सेटा को जो imperfect mode अछि और imperfect figure अछि सेटा reduce हबो कहा को to a perfect mode in figure 1. Okay, then such a mode is valid and if not it is invalid. माने जेतले reduce हे जीवो कोन कहा से reduce हबो figure 1 से तो reduce हबो सेथरे जोटा valid बाहर होची सेटा को से accept करिवे otherwise जोटा valid ना बाहर होची सेटा को से accept करिवे नाही. Clear? Then the transformation of an imperfect mode in an imperfect figure to a perfect mode in figure 1 is called as reduction. ए जो एंटर जो ट्रांसफॉर्मेशन होची कहार ट्रांसफॉर्मेशन ए जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिगर जो imperfect फिगर रू परफेक्ट फिगर को जो ट्रांसफॉर्मेशन होची एंटायर प्रोसेस टा को कोन कोन रिडक्शन कोनती. क्लियर? यस मैम. समस्त बुझी पड़लो. अंडरलाइन करो होती कि the transformation of an imperfect mode in an imperfect figure to a perfect mode in figure 1 is called as reduction. बुझिएला? यस मैम. विष्णु बुझी पड़लो? कोन तो वॉइस पूरा आसुनी किछि कोन कुहो
को विष्णु कौन कहूच मैम कोठी पढ़ा चली माने जो रिडक्शन कोठी नहीं जानी पारूंगा। Aristotle's dictum 2.36 पेज आज्ञा तेरा मैम पेंडिंग थिला ना डायरेक्ट रिडक्शन इनडायरेक्ट रिडक्शन तमरा पेंडिंग थिला ना आज्ञा आज्ञा मैम। अंडरलाइन करो बुझी पाइलो रिडक्शन काको कहजे का कहजे काको कहजे रिडक्शन मैम मु कहबी हाँ तमे ही कहबो reduction is defined as a process of or method of proving the validity modes of the imperfect figure मु of अभी the जेंद्र transformation. लिसन मु अभी जेंद्र डेफिनेशन कनी लिटरली ताको हमें को प्रोसेस रे कहबा माने को प्रोसेस टा हमें रिडक्शन टा कहबा हमरो इम्परफेक्ट फिगर टू परफेक्ट फिगर को जो आसुची जो प्रोसेस रे जो वे रे आसुची ताको हमें कहबा रिडक्शन बुझेला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन imperfect mode in an imperfect figure to a perfect mode in figure 1 is called as reduction clear समझते Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरलाइन कर दो then on reduction the imperfection in these modes is removed and Aristotle's dictum then becomes applicable to them on reduction the imperfection in these modes is removed and Aristotle's dictum then becomes applicable to them okay then reduction kona reduction is defined as a process or method of proving the validity of modes in the imperfect figure by transforming them into the modes in the first figure literally eta तुमको से जिंस कहूची जे reduction होची defined as a process or method रिडक्शन होची गोटे प्रकार प्रोसेस और मेथड जहा माध्यम रे हमें इम्परफेक्ट फिगर को प्रूफ करि परिबा या तार जो ट्रांसफॉर्मेशन होची प्रूविंग द वैलिडिटी ऑफ मोड्स इन द इम्परफेक्ट फिगर्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू द मोड्स इन द फर्स्ट फिगर जो ट्रांसफॉर्मेशन होची इम्परफेक्ट फिगर टू परफेक्ट फिगर द सेटा एंटायर प्रोसेस टा को हमें कहबो रिडक्शन इज दैट क्लियर Yes, ma'am. समझते बुझी पाइलो Yes, ma'am. समझते बुझी पाइलो ना कार डाउट रेला Yes, ma'am. बुझेला figure 2 figure 3 or figure 4 that could be transformed to the perfect modes in the figure modes गुड़ाक figure 3 figure 2 figure 3 figure 4 रो सेटा ट्रांसफॉर्म हबो figure 1 को ओके देन एटा अंडरलाइन करो रिडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स रिडक्शन होची दी प्रकार गोटे होची डायरेक्ट रिडक्शन और ऑस्टेंसिव रिडक्शन आ गोटे होची इनडायरेक्ट रिडक्शन और reductio ad absurdum reductio ad absurdum बुझिएला रिडक्शन केते टाइप्स रो रिडक्शन Two types. is of two types direct reduction or ostensive reduction secondly indirect reduction or reductio ad absurdum reductio ad absurdum रो मीनिंग होची कोन impossible clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. तमरा शॉर्ट क्वेश्चंस एमती तम शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट रिडक्शन सेटा आसीबोनी शॉर्ट क्वेश्चंस आसीबो ऑस्टेंसिव रिडक्शन नेम टा कोन ऑस्टेंसिव रिडक्शन कोन Direct reduction. Direct. डायरेक्ट रिडक्शन और reductio ad absurdum रो ता माने Indirect reduction. Direct. indirect reduction very good
समस्या बुझी पाइला Yes, ma'am. देन